हिलना नहीं चाहिए। My phone. Online students, am I audible? Recording in progress. Online students, if you can hear me, just type yes in the chat. Yes. Okay, online students, the first thing you have to do, you have to type your name and your phone number in the messages. Everyone, start doing it. Abhinav, Abhishek, Ajay, Akash, Vijender, Dipanshu, Anushka, Parul. Everyone, start doing it. Pooja, please type your name and your phone number in the messages. Right. Direct message karo, phone number and your messages. Your name and your phone number in the message. Everyone start doing it. Ajay, Ayush, Vijender, Harshita, Dipanshu, everyone. Just right. Jaldi karo. So we will start the lecture then. You first demo है तुम्हारा? Online students karo. Please type your name and your phone number, both things. Chalo, let's start. Hello everyone, my name is Anurag Singh. Welcome to Pahuja Law Academy, and this is the demo lecture for the Code of Civil Procedure. Now, before we go for the demo topic, first thing you need to understand is the importance of CPC. Right? Laws can be mainly divided into two categories, that is criminal, which will consist of the IPC and CRPC. That is it. Criminal itna hi hai. Every other law will fall under the civil category. It can be contract, or it can be the Transfer of Property Act. It can be the Hindu laws. It can be the Muslim laws, or it can be tort. It can be the Sale of Goods Act, partnership, registration limitation, any other law, or we can say company law. All of these, labor law, any other law, labor laws, all of these will fall under the civil category. So civil is much more broader than criminal, and 90% of the laws will be civil. So 90% of law kya hai? Civil hai. And to regulate these 90% of the laws, there is only one CPC, right? So immediately from an understanding perspective, अगर 90% law civil है और उन्हें regulate करने के लिए there is only one CPC,
immediately it becomes important for you to understand. अगर CPC समझना, अगर law समझना है, 90% law civil है, तो आपको you must be thorough with the CPC. Now that is from an understanding perspective. From an examination perspective, देखो, in the prelims exam you will get somewhere between 15 to 20 questions from CPC. In the mains exam, देखो mains में क्या होता है, there is a separate paper on procedural law, right? And in this you will be getting questions from CPC, CRPC and the Indian Evidence Act. So you can see that 1/3 weightage is still given to the CPC, right? अब देखो मेंस में, in some mains exam, not all, but in some mains exam you will have to write the plaint, you will have to write the written statement, and in some exams even the judgment has to be written, right? So plaint तभी लिख पाओगे when you are thorough with the CPC. Same is the case with written statement and same is the case with judgment writing. हर जगह तुम्हें CPC की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, right? So even from an examination point of view, CPC is very important because 90% of the law क्या है, civil है, तो इसलिए CPC समझना चाहिए. और मेंस के और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी CPC बहुत इंपॉर्टेंट है. So देखो, इंपॉर्टेंस दोनों तरीके से देखना, अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव से और एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, दोनों तरीके से. नाउ इंपॉर्टेंस समझना इजी है, राइट? बट CPC समझना is not very easy. Why? Because CPC can be very confusing. देखो, to understand CPC, what for the first thing we have to do, we have to divide CPC into two parts. CPC को divide करो two parts में. The first would be the sections and the other we have sections are the general principles or the broad framework. They do not go into detail. You are not going to find any details. Sections क्या है? Sections give you only the general principles or the broad framework. They never go into details. ठीक है? Orders, on the other hand, these are the real elaboration of proceedings. And this is actually the place where you are going to get the details, right? तो पहला काम क्या करना है? We have to divide CPC into two parts, sections and orders. What are sections? Sections are the general principles of the broad framework. They do not go into details. Orders are the real elaboration of proceedings, and this is the place where you are going to get the details, right? अब ध्यान से सुनना, that for almost every order. So how do you study CPC? You have to study the section and then directly jump to the corresponding order. That is the proper way to study CPC. CPC को कभी भी section wise नहीं पढ़ना and order wise भी नहीं पढ़ना. That is not the proper way. कैसे पढ़ना है? We have to study the section and then directly jump to the corresponding order, right? So देखो, these are a few examples. इसे लिखना कि कैसे. Suppose the topic is, let's say the topic, and this is the section and the corresponding order. ठीक है? So the topic is, let's say, institution of suits. Institution of suits, right? The section is going to be section 26 and the order is going to be order 4, right? The first thing. Let's say the topic is summons. Summons के लिए it is section 27 and order 5.
राइट। अगर जजमेंट पढ़ना है हम लोगों को, जजमेंट, इट इज सेक्शन 35 एंड ऑर्डर 20। अगर मान लो हम लोगों को एग्जीक्यूशन पढ़ना है, so execution is section 36 to 74 and order is order 21, and the order is order 21. Now suppose हम लोगों को appeals पढ़ना है, appeals is section 96 to 100 and the order is order 41, right? देखो इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं रेफरेंस के लिए, जैसे है अगर हम लोग को रेफरेंस पढ़ना है, इट इज सेक्शन 113 एंड ऑर्डर 46। अगर रिव्यू पढ़ना है, सो इट इज सेक्शन 114 एंड ऑर्डर 47। ठीक है, ये देखो, दीज आर जस्ट फ्यू एग्जाम्पल्स जहां पर की सेक्शन का एक कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर है। ठीक है, देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स इन सीपीसी, राइट। तो हम लोगों को देखो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, लेट्स से इंटरप्लीडर सूट्स, इंटरप्लीडर सूट्स। इसके लिए वी हैव टू स्टडी सेक्शन 88 एंड ऑर्डर 35, राइट। So there can be n number of examples in CPC where a section has a corresponding order, right? और यही सही तरीका है पढ़ने का। Now to demonstrate this point, our topic for the demo is going to be interpleader suits, right? Section 88 and order 35. So let's start with the topic. चलो, online students, did you get the point? कैसे पढ़ना है? We have to study the section and then directly jump to the corresponding ऑर्डर। पारुल, आकाश, आयुष, जेसिका, अभिनव, हर्षिता, काजल, एवरीवन, समझ में आया? सेक्शन का एक कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर होता है एंड दैट इज द प्रॉपर वे टू स्टडी सीपीसी। चलो, इसी चीज को हम लोग अभी डिटेल में करते हैं इस टॉपिक से। दिस इज द टॉपिक ऑफ इंटरप्लीडर सूट्स। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है इसके लिए? वी हैव टू स्टडी सेक्शन 88 and order 35, section 88 and order 35. Now before we go into the bare act section 88 and order 35, हम लोगों को क्या करना है? पहले एक एग्जांपल देखते हैं और इस एग्जांपल को ध्यान से सुनना, बिकॉज पूरे लेक्चर में वही एग्जांपल मैं बार बार यूज करूंगा। चलो, लेट्स से देयर इज अ पर्सन ए एंड ए इज द ओनर ऑफ द हाउस। ठीक है, ये क्या करता है? ए गिव्स हिज हाउस टू डी फॉर सेफ कीपिंग, राइट? एंड फॉर डूइंग दिस जॉब ए सेज टू डी, आई विल गिव यू रुपीज 10,000 पर मंथ एंड एनी टाइप ऑफ चार्जेस, जैसे मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह है, आई विल पे, एंड एनी टाइप ऑफ कॉस्ट्स दैट मे अराइज, मैं वो भी, कोई अगर रिपेयर कॉस्ट है वगैरह, मैं वो सारा कुछ पे करने के लिए रेडी हूँ, राइट? नाउ ए ने अपना घर दे दिया डी को फॉर सेफ कीपिंग। अब देखो व्हाट हैपेंस इज ए हैज 2 चिल्ड्रन, राइट, बी एंड सी। इसके बाद क्या होता है? ए डाइज विदाउट अ विल, राइट? ए के 2 चिल्ड्रन है, बी एंड सी, और ए बिना विल के मर जाता है, राइट? व्हाट हैपेंस इज बी एंड सी स्टार्ट फाइटिंग ओवर द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बी एंड सी दे स्टार्ट फाइटिंग ओवर द प्रॉपर्टी। बी गोज टू डी एंड सेज दिस इज माय हाउस, राइट? एंड सेम थिंग सी भी आता है डी के पास और बोलता है दिस इज my house, right? अब देखो यहां पर क्या होता है, डी जो है, देखो डी की सिचुएशन क्या है, डीज सिचुएशन, ठीक है?
डी सबसे पहले कहता है आई हैव नो पर्सनल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी. आई हैव नो पर्सनल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी. पहली चीज कि मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट इस प्रॉपर्टी में नहीं है. सेकंड, वो बोलता है आई ओनली वांट माय चार्जेस एंड कॉस्ट्स. मुझे बस मेरे चार्जेस और कॉस्ट दे दीजिए जो कि मुझे प्रॉमिस किया गया था. ठीक है. थर्ड, ही सेज आई एम रेडी एंड विलिंग to give the property to the rightful claimant. ठीक है. बी और सी जिसका भी हो वो मैं उसे देने को रेडी हूं. बट प्रॉब्लम यही है कि आई डोंट नो हु इज द राइटफुल क्लेमेंट. आई डोंट नो हु इज द rightful claimant. राइट. ठीक है. देखो डी की सिचुएशन क्या क्या है. वो बोलता है कि देखो आई हैव नो पर्सनल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी. आई ओनली वांट माय चार्जेस एंड कॉस्ट्स. आई एम रेडी एंड विलिंग टू गिव द प्रॉपर्टी टू द राइटफुल क्लेमेंट. बट द प्रॉब्लम इज आई डोंट नो हु इज द राइटफुल क्लेमेंट. यहां पर क्या होगा. द डी इज गोइंग टू फाइल अ सूट अगेंस्ट बी एंड सी, both of them. ठीक है. डी एक सूट फाइल करेगा बी और सी दोनों के अगेंस्ट. ठीक है. अब जब सूट फाइल कर देगा डी विल एक्सप्लेन हिज सिचुएशन टू द कोर्ट. वो बता देगा कोर्ट को कि मेरी ये सिचुएशन है जो कि हम लोगों ने 1 2 3 4 में की थी. व्हाट द कोर्ट कैन डू, कोर्ट कर सकती है, कोर्ट अवॉर्ड डी हिज चार्जेस and dismiss him from the suit. Dismiss him from the suit. ठीक है. तो कोर्ट जो है डी को उसके चार्जेस दे सकती है, कहते ठीक है अब आप जा सकते हैं. और इसके बाद क्या करेगी कोर्ट, बी या सी में से किसी एक को उठा करके प्लेंटिफ बना देगी. तो डी तो चला जा चुका है. यहां पर या तो कोर्ट ये कर देगी बी वर्सेस सी कर देगी या फिर सी वर्सेस बी कर देगी. ठीक है. और इसके बाद क्या होगा, द सूट विल गो ऑन इन दी ऑर्डिनरी मैनर. राइट. सो देखो यहां पर जो डी ने सूट फाइल किया है बी वर्सेस सी दोनों के अगेंस्ट. राइट. दिस इज एन इंटरप्लीडर सूट. दिस इज एन इंटरप्लीडर सूट. ठीक है. ये एग्जाम्पल एवरीवन क्लियर. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, प्रीति, पारुल, काजल, आकाश, जेसिका, अभिनव, आयुष, एवरीवन एग्जाम्पल क्लियर. दीपांशु, हर्षिता, विजेंद्र, बबीता, एवरीवन क्लियर. चलो नाउ लेट्स गो टू द बेयर एक्ट. ये एग्जाम्पल क्लियर है. व्हाट्स इट मीनू. चलो let's go to the Bear Act. एक चाय दे. अच्छा ठीक. चलो let's go to the Bear Act. This is section 88 which is interpeller suits. So क्या लिखा है, where two or more persons claim adversely to one another. हमारे एग्जाम्पल में ये कौन था, Bear Act पे ध्यान दो. when two or more persons claim adversely to one another. ये हमारे एग्जाम्पल में कौन था, बी एंड सी. रिमेंबर अभी हम लोगों ने किया बी एंड सी दे वर एक्चुअली क्लेमिंग द सेम थिंग. राइट. यहां पर हम लोगों ने किया था बी एंड सी दे वर क्लेमिंग द सेम थिंग. व्हेन टू और मोर पर्सन्स क्लेम एडवर्सली टू वन अनदर द सेम डेट्स, सम ऑफ मनी और अदर प्रॉपर्टी, मूवेबल और इमूवेबल. हम लोगों ने इमूवेबल का एग्जाम्पल लिया था. फ्रॉम अनदर पर्सन, बी और सी किससे क्लेम कर रहे थे प्रॉपर्टी, डी से. राइट. ये फ्रॉम अनदर पर्सन कौन है, डी. राइट.
who claims no interest therein. D ने अपनी सिचुएशन में बोला था I have no personal interest in the property other than for charges or costs. I only want my charges or costs. And who is ready to pay or deliver it to the rightful claimant. D was ready कि हाँ मैं rightful claimant को देने को ready हूँ. Such other person, ये such other person किसकी बात कर रहा है? ये D की बात कर रहा है. Such other person may institute a suit of interpleader against all the claimants. तो यहाँ पर जब D फाइल करता है सूट, वो किसके अगेंस्ट सूट फाइल करता है? दोनों के अगेंस्ट. B और C दोनों के अगेंस्ट फाइल करेगा. ठीक है? For the purpose of obtaining a decision as to the person to whom the payment or delivery shall be made. मतलब कि ये जो हाउस है जिसके लिए कि ये सूट किया गया है, ये हाउस किसको जाना चाहिए. ठीक है? And of obtaining indemnity for himself. ठीक, अपने आप के लिए indemnity कैसे obtain कर रहा है? He is getting his charges and he is being dismissed from the suit. That is D obtaining indemnity for himself. Right? चलो, Section 88 का ये main part समझ में आया? Okay, ठीक है. अब देखो, online students, Section 88 का main part clear है? Everyone, Abhinav, Ayush, Preeti, Parul, Kajal, Babita, Anushka, everyone. Okay, ठीक है. अब देखो, प्रोवाइजो पे चलते हैं. देखो प्रोवाइजो क्या बोलता है? प्रोवाइजो कहता है दैट इफ मान लेते हैं कि बी ने ऑलरेडी एक सूट कर रखा था जिसमें कि सी और डी दोनों पार्टीज वहां पर प्रेजेंट थी. ठीक है? अगर ये सूट एक ऐसा सूट इट वाज ऑलरेडी पेंडिंग, अब जो डी का इंटरप्रेटर सूट था बी एंड सी बोथ ऑफ देम, दिस विल नॉट बी अलाउड. सारी पार्टीज जब यहाँ पर हैं तो हमें एक इंटरप्रेटर सूट की जरूरत नहीं है क्योंकि इसी सूट में वो सारे के राइट्स डिटरमाइन किए जा सकते हैं. दैट इज व्हाट द प्रोवाइजो इज सेइंग. देखो प्रोवाइजो क्या लिखता है? प्रोवाइडेड दैट where any suit is pending in which the rights of all parties can properly be decided, no such suit of interpleader shall be instituted. तो अगर एक सूट ऑलरेडी था B वर्सेस C एंड D, तो उस टाइम पे इंटरप्लेटर सूट अलाउड नहीं होता है. ठीक है? Now this is the section. ठीक है? अब देखो सेक्शन ने हमें कई सारी चीजें तो बताई, लेकिन कई सारी चीजें मिसिंग है अभी भी. जैसे जो यहाँ पर मैंने बताया था कि कोर्ट जो है वो डी को उसके चार्जेस अवॉर्ड करके डिसमिस कर देती है. ये चीज सेक्शन 88 में अभी तक कहीं भी नहीं आई है. और जो कोर्ट जो है वो बी यहाँ जो डिफेंडेंट था उसे बाद में प्लेंटिफ बना देती है. ये चीज भी सेक्शन 88 में नहीं आई है. सेक्शन 88 अगर तुम लोग को याद हो, सेक्शन क्या करता है? सेक्शन ओनली गिव्स यू द फ्रेमवर्क. सेक्शन क्या करता है? ओनली फ्रेमवर्क देता है. इट डज नॉट गो इनटू डिटेल्स. डिटेल्स के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? ऑर्डर्स पे जाना पड़ेगा. राइट? सो सेक्शन 88 तो हम लोगों ने देख लिया. अब उसका कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर जो है ऑर्डर 35, हम लोग वहां चलते हैं. चलो लेट्स गो टू ऑर्डर 35. अब देखो, चलो ऑर्डर 35 में चलते हैं. ऑर्डर 35 की हेडिंग क्या है? इंटरप्रीटर. राइट? तो सेक्शन 88 का वेयर इंटरप्रीटर सूट्स में बी फाइल्ड, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर कौन सा है? ऑर्डर 35 है. ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट. रूल 1 क्या लिख रहा है? इन एवरी सूट ऑफ इंटरप्रीटर द प्लेंट शैल इन एडिशन टू द अदर स्टेटमेंट्स नेसेसरी फॉर प्लेंट्स. देखिए क्या लिख रहा है? इन एडिशन टू द अदर स्टेटमेंट्स नेसेसरी फॉर प्लेंट्स. एक प्लेंट में और क्या क्या चीजें नेसेसरी होती हैं? क्या क्या होती है? अरे बताओ, व्हाट इज अ प्लेंट? जनरल क्वेश्चन है. प्लेंट क्या होती है? कॉमन सेंस से बताओ. कॉमन सेंस से बताओ. अरे कुछ तो बताओ. गलत ही बोलोगी तो क्या होगा? कोई नहीं है यहाँ पर. अच्छा मान लो तुम्हारा कोई फ्रेंड है जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, वो तुमसे पूछता है कि लॉ पढ़ा तुमने, बताओ कि प्लेंट क्या होती है. कुछ तो समझाओगे उसे. एक रिटन कंप्लेंट जो कोर्ट को देते हो, कम से कम ये तो बोलोगी. ऐसे साइलेंट तो नहीं हो जाओगी ना कुछ तो.
शिता, नॉट रॉन्ग, बट बहुत ही वेग है. देखो, प्लेंट नॉट डिफाइंड इन द सीपीसी. देखो, प्लेंट को समझना अच्छे से. कोई भी प्लेंट जो होती है, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. ठीक है, एनी प्लेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 parts. The first would be the facts of the case. ठीक है, जिसमें कि नंबर 1 हमारा रहेगा names of the parties. Names of the parties. Number 2 रहेगा the description of property involved. The description of property. Number 3 would be the cause of action. तो सबसे पहले क्या होंगे हमारे facts of the case होंगे. सेकेंड होंगे हमारे technical pleadings. Technical pleadings. Technical pleadings कौन कौन सी होती हैं? It is limitation, jurisdiction and valuation. Right? So technical pleadings are always related to the maintainability of the suit. Maintainability of the suit. Right? देखो, हो सकता है कि फैक्ट्स में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन वो जो सूट है वो लिमिटेशन पीरियड के बाहर हो. राइट? तो टेक्निकल प्लीडिंग्स में आपको ये भी बताना पड़ता है कि द सूट इज विद इन द लिमिटेशन पीरियड. ठीक है, और जुरिस्डिक्शन भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा. अगर सूट जो है वो फाइल होना चाहिए दिल्ली कोर्ट में और आप जाकर के मुंबई कोर्ट में फाइल करोगे तो वो सूट जो है मेंटेनेबल नहीं होगा. मुंबई कोर्ट बोलेगी कि हमारा जुरिस्डिक्शन इस केस में नहीं है. राइट? सो ये सारे फैक्ट्स भी आपको मेंशन करने पड़ते हैं. टेक्निकल प्लीडिंग्स आर ऑलवेज रिलेटेड टू द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट. वो सूट मेंटेनेबल है या नहीं है, या उस सूट की हियरिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. ठीक है, एंड लास्टली क्या होता है प्लेंट में लास्ट में? एनीवन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, प्रिशिता या अनुष्का, प्रीति, अभिनव, प्लेंट के एंड में क्या होता है? प्लेंट के एंड में देयर इज ऑलवेज द रिलीफ. रिलीफ क्लेम करते हो, रिलीफ विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ प्रेयर. इफ यू रिमेंबर, एक प्रेयर क्लॉज होता है एंड में, एंड इट इज एक्चुअली द रेमेडी दैट यू सीक फ्रॉम द कोर्ट. ठीक है, प्लेंट में देखो हमेशा क्या होता है? एंड में प्रेयर क्लॉज होता है. सो मीनू, क्या इससे हम लोग बना सकते हैं प्लेंट की डेफिनेशन? Plaint is a written document which contains facts of the case like names of the parties, description of property and the cause of action. It also contains technical pleadings relating to the maintainability of the suit like limitation, jurisdiction and valuation. Right? And it ends with a relief which is in the form of a prayer where the person seeks the remedy from the court. So that is the definition of plaint. देखो CPC में कहीं defined नहीं है, इसीलिए ये definition हम लोगों के लिए ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है. व्हाई? बिकॉज देखो, प्लेंट चाहे 8 पॉइंट्स की हो चाहे 800 पॉइंट्स की हो, वो हमेशा ही इन 3 पॉइंट्स में उसे वो किया जा सकता है, इन 3 पार्ट्स में उसे डिवाइड किया जा सकता है. ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर ये चीज क्यों डिस्कस कर रहे हैं? चलो देखो, ये चीज यहाँ पर डिस्कशन नेसेसरी है बिकॉज ऑर्डर 35 का रूल 1 क्या कहता है? इन एडिशन टू द अदर स्टेटमेंट्स नेसेसरी फॉर प्लेंट्स. तो हम लोगों ने ये देख लिया कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स नेसेसरी होती है फॉर प्लेंट. अब हम लोगों को देखना है कि और क्या क्या होना चाहिए. चलो, क्लॉज ए क्या है? दैट द प्लेंटिफ क्लेम्स नो इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर इन डिस्प्यूट other than for charges or costs. D, यहाँ पर प्लेंटिफ कौन है हमारा? D, क्योंकि D ने ही इंटरप्रेटर का सूट फाइल किया था. राइट? तो द प्लेंटिफ क्लेम्स नो इंटरेस्ट, वो पहले से ही बोलता है ना. D अपनी सिचुएशन में उसने बोला था कि मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ क्या चाहिए? अपने चार्जेस और कॉस्ट चाहिए. राइट? इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए. क्लॉज बी,
द क्लेम्स मेड बाय द डिफेंडेंट्स सेवरली। यहां पर दिखा है कि जो डिफेंडेंट ने क्लेम किया है, यानी कि बी और सी ने जो क्लेम किया है, लेकिन ये वर्ड आ रहा है सेवरली। क्या मतलब होता है इसका सेवरली? एनीवन बताओ? आयुष, अनुष्का, हर्ष, अंकुर, गुंजन, एनीवन? विजेंद्र, प्रशिता, एनीवन? देखो सेवरली जहां पर आए, सेवरली को हमेशा समझा करो ईच वन, राइट? सेपरेटली, सेपरेटली, राइट? आयुष, प्रशिता तुम्हारा भी सही है, ईच वन, सेपरेटली, ईच वन। तो यहां पर डिपेंडेंट सेवरली का मतलब क्या होगा? जब हम लोग सी और डी, सॉरी बी और सी जब जाते हैं तो डी को ये बोलना पड़ेगा कि बी आया था मेरे पास और उसने बोला था कि ये घर मेरा है, एग्जैक्टली था बिना, एंड सी आया था मेरे पास एंड ही सेड कि दिस इज माय हाउस, दिस इज, ये दोनों लाइन है, ये क्या है? द क्लेम्स मेड बाय द डिफेंडेंट्स सेवरली, राइट? चलो क्लॉज सी, चलो हम लोग क्लॉज सी पे चलते हैं। क्या लिखा है? दैट देयर इज नो कोल्यूजन बिटवीन द प्लेंटिफ एंड एनी ऑफ द डिफेंडेंट्स, राइट? प्लेंटिफ और डिफेंडेंट्स कौन कौन थे हमारे एग्जाम्पल में? दे वर डी एंड बी एंड सी, यही था हमारा सूट। तो यहाँ पर नो कोल्यूजन, व्हाट डू यू मीन बाय कोल्यूजन? ये वर्ड जो है कोल्यूजन, इसका मतलब क्या होता है? नहीं, वो तो कोलिजन होगा, ये कोल्यूजन है, दूसरा वर्ड है, बताओ? झगड़ा तो नहीं होगा, झगड़े का ठीक आप नहीं, मेल मिलाप भी नहीं, मिली भगत, राइट? यहाँ पर मिली भगत, हाँ। नो इंटरेस्ट इज हैम्पर्ड, प्रायर प्लानिंग, यस प्रिशिता। So there is no collusion, there is no prior meeting of minds to do something wrong. Collusion का मतलब होता है prior meeting of minds to do something wrong. तो यहाँ पर D की कोई मिली भगत नहीं थी B और C दोनों से। देखो इंटरप्रेटर सूट में क्या याद रखना कि ये जो सूट होता है D वर्सेस B एंड C का, ठीक है? ये जो सूट है D वर्सेस B एंड C का, the real conflict is not between the plaintiff and the defendants. किसके बीच में है? डिफेंडेंट्स के बीच में है रियल कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि बिकॉज प्रॉपर्टी किसको चाहिए? या तो बी को चाहिए या सी को चाहिए। डी को तो वो प्रॉपर्टी नहीं चाहिए क्योंकि उसने ऑलरेडी बोल रखा था कि आई हैव नो पर्सनल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, ठीक है? तो इंटरप्रेटर सूट्स में एक चीज याद रखना, दैट द रियल कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन द डिफेंडेंट्स ऑलवेज। चलो ये था रूल 1, चलो लेट्स गो टू रूल 4। चलो रूल 4, प्रोसीजर एट फर्स्ट हियरिंग। तो क्या लिखा है सब रूल 1 में? एट द फर्स्ट हियरिंग द कोर्ट में क्लॉज ए डिक्लेयर दैट द प्लेंटिफ इज डिस्चार्ज्ड फ्रॉम ऑल लायबिलिटी टू द डिफेंडेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द थिंग क्लेम्ड, अवॉर्ड हिम हिज कॉस्ट्स एंड डिसमिस हिम फ्रॉम द सूट। देखो ये चीज जो थी, दैट द प्लेंटिफ, यहाँ पर द प्लेंटिफ इज डी, द प्लेंटिफ इज डी, he is discharged from all liability, the court has given him his costs and the court has dismissed him from the suit. Now this detail was not in the section, if you remember section में ये detail नहीं थी। ये detail कहाँ पर आई है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, प्रशिता, विजेंद्र, अभिनव, आयुष, ये detail ऑर्डर में होगी ऑलवेज, एंड दैट इज द होल पॉइंट। देखो सेक्शन जो है वो सारे डिटेल्स नहीं रखता, इट इज द ऑर्डर्स, राइट? ऑर्डर 35 का रूल 4 वहां पर होती है, ठीक है? अब देखो अगर हम लोग इस केस को ध्यान से देखें तो यहाँ पर केस में जो B एंड C एंड D है, राइट? यही हम लोग देख रहे थे। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग क्लोजली देखें तो B, देखो D जो है एक बहुत ही यूनिक सिचुएशन में है। D इज इन अ वेरी पिक्यूलियर सिचुएशन जहां पर कि वो A से भी इंटरैक्ट करता था, B से भी कर रहा है और C से भी कर रहा है, राइट? सो देखो ऑल्दो कि थियोरेटिकली हम लोग कहते हैं कि D को उसके चार्जेस दे करके और उसे कह दिया जाता है कि यू आर डिसमिस्ड फ्रॉम द सूट, बट प्रैक्टिकली ऐसा कभी नहीं होता। प्रैक्टिकली कोर्ट क्या कहती है D से कि आप कंटिन्यू करिए सूट में जब तक कि सूट का फाइनल डिस्पोजल नहीं हो जाता, ठीक है? क्यों? क्योंकि अभी तो चलो हम लोगों ने घर लिया था, सपोज ये घर ही एक सिनेमा हॉल होता, राइट? एंड डी वाज द मैनेजर ऑफ द प्रॉपर्टी,
वो सिनेमा हॉल का मैनेजर था, वहां पर डी को रिमूव करना मतलब आप प्रॉपर्टी की जो इनकम है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, राइट? तो इस टाइम पे क्या होता है, कोर्ट उनसे बोलती है कि देखिए आप सूट में कंटिन्यू करिए अंटिल द एंड ऑफ द सूट, ठीक है? तो थियोरेटिकली डी को डिसमिस किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर लिखा है क्लियरली कि उसको उसके कॉस्ट दे करके डिसमिस कर दिया था सूट से, बट प्रैक्टिकली क्या होता है वो क्लॉज बी में है, जो क्या लिखा है, इफ इट थिंक्स दैट justice or convenience so require retain all parties until the final disposal of the suit. तो प्रैक्टिकली क्या होता है, कोर्ट हमेशा उसे रिटेन कर ही लेती है, बहुत कम होता है जब उसे कहते हैं कि आप छोड़ करके चले जाइए। क्योंकि देखो अगर हम लोग हाउस की भी बात मान लेते हैं तो अभी भी जो सूट है वो पेंडिंग ही है बी और सी के बीच में, वही तो चाहिए होगा ना घर के रखवाली करने के लिए, राइट? तो उस टाइम पे भी कोर्ट कहते हैं डी से कि आप कंटिन्यू करिए, इसमें घर की जो केयर टेकिंग कर रहे थे आप वो काम करते रहिए, ठीक है? चलो अब देखो, लेट्स गो टू रूल 4। हम लोग का रूल 4 का सब रूल 1 हम लोगों ने किया। अब देखो इसमें चलते हैं सब रूल 2। देखो क्या लिखा है, where the court finds that the admission of the parties or other evidence enable it to do so, it may adjudicate the title to the thing claim. अब देखो सब रूल 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, where the admission of the parties do not enable the court so to adjudicate, it may direct, clause A, that an issue or issues between the parties be framed and tried. ठीक है, इशू फ्रेम करो और फिर ट्रायल करो, राइट? अब यहां पर लिखा है इश्यूज बी फ्रेम्ड एंड ट्राइड। इश्यूज, व्हाट इज एन इशू? क्या होता है कि इशू? एनीवन? मुद्दा तो समझाओगे कैसे? सीपीसी में कैसे समझाया गया है इस इशू को? प्रैक्टिस में रहे हो जी? अच्छा, तो सीपीसी का केस वगैरह तो सिविल तो आया ही होगा तुम्हारे सामने। आसान भाषा में, सीपीसी में आसान भाषा है कहीं? नहीं। ठीक है, ओके विजेंद्र, देखो इश्यूज अगर तुम लोग को पढ़ना है तो ऑर्डर 14 में है, ठीक है? अब इशू कब बनता है? देखो इश्यूज अराइज मैटर इन डिस्प्यूट, ओके? देखो इश्यूज अराइज व्हेन अ फैक्ट इज asserted by one party and हजम नहीं होता, बिल्कुल खाया नहीं जाता, ये by the जबरदस्ती खाता हूँ। एक पार्टी एसर्ट करती है, दूसरी डिनाई करती है, इसी में इशू फ्रेमिंग होती है। अगर तुम लोगों ने किया है, तुमने प्रैक्टिस की है, तो एक पार्टी अगर कहती है आई हैव द राइट ऑफ पोजेशन, राइट, और दूसरी कहती है यू डू नॉट हैव द राइट ऑफ पोजेशन, द राइट ऑफ पोजेशन, हो गया? एक एजर्शन हुआ और एक डिनायल हुआ। इन दोनों के बेसिस पर ही क्या फ्रेम किए जाते हैं इश्यूज, क्योंकि प्लेंट में एजर्शन होता है, डब्ल्यूएस में डिनायल होता है। अगर डब्ल्यूएस देखा हो रिटन स्टेटमेंट दैट द डिफेंडेंट डिनाइज लिखते हैं हमेशा, देखा कभी? नहीं देखा? राइट, देखो एक पार्टी जो है वो एजर्ट करेगी और दूसरी पार्टी जो है वो डिनाई करती है, तभी इशू अराइज होगा, क्योंकि इन दोनों के बेसिस पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो मान लेते हैं ये ए कह रहा है और ये बी कह रहा है, ठीक है? ए ने कहा कि आई हैव द राइट टू पोजेशन, बी कहता है यू डोंट हैव द राइट टू पोजेशन। इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा और क्वेश्चन होगा वेदर ए हैज अ राइट ऑफ पोजेशन। यही क्वेश्चन जो बनता है, एक ने बोला कि मेरे पास है, दूसरा कहता है कि इनके पास नहीं है, उसी के बेसिस पर जो क्वेश्चन बनता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इशू। और फिर पूरे जो मामले की सुनवाई होती है इसी मुद्दे पे होती है। अब ऐसे आता है प्लेंट में, देखो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो एजर्शन एंड डिनायल ऐसे नहीं होता। एजर्शन प्लेंटिफ कहाँ करता है? अपनी प्लेंट में, राइट? और डिनायल का होता है जो WS होती है या रिटन स्टेटमेंट होती है वहां पर, और कोर्ट जो है दोनों को पढ़ती है और दोनों में से देखती है कि डिनायल कहाँ पर है, और उसी डिनायल के बेसिस पर हम लोग इशू फ्रेमिंग करते हैं।
ठीक है, देखा होगा ना ऐसे, वेदर ए हैज अ राइट ऑफ पोजेशन, इशू फ्रेमिंग होती है, राइट। सो यहाँ पर कोर्ट क्या करेगी, कुछ इश्यूज को फ्रेम करेगी और उनके बेसिस पर ट्रायल होता है। याद रखना, इशू फ्रेमिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ ट्रायल, बिकॉज इशू पर ही ट्रायल होगा। एविडेंस जो अलाउड होगा वो भी कैसे होगा, इशू वाइज ही दिया जाता है हमेशा। इसीलिए इशू को फ्रेम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, अगर इशू की डेफिनेशन तुम लोग देखना चाहते हो तो ऑर्डर 14 का ही रूल 1 है, ठीक है। उसमें एकदम क्लियरली लिखा है, issues arise when a material proposition of fact is asserted by one party and denied by the other party, right? तो अगर जो लोग घर पे बैठे हैं, अगर उन्हें देखना है तो ऑर्डर 14 के रूल 1 में ही दिया हुआ है ये। चलो इसके सब रूल 2 में चलते हैं, सॉरी क्लॉज बी में चलते हैं। तो क्या लिखा है, that any claimant be made a plaintiff in lieu of or in addition to the original plaintiff। याद करो क्या होता था, बी और सी के बीच में से किसी को उठा करके प्लेंटिफ बना देते थे, जो मैंने पहले बताया था एक जगह, यहाँ पर देखो ये रहा। जब डी सूट छोड़ के चला जाता है तब क्या करते हैं, बी और सी में से किसी एक को प्लेंटिफ बना देते हैं। या तो बी प्लेंटिफ बन गया था या फिर सी प्लेंटिफ बन जाता था, और उसके बाद जो सूट है कैसे चलता है, ऑर्डनरी मैनर में, राइट। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, दैट एनी क्लेमेंट बी मेड अ प्लेंटिफ, अ क्लेमेंट कौन था, बी और सी दोनों में से कोई एक क्लेमेंट होगा, मेड अ प्लेंटिफ इन लिeu ऑफ और इन एडिशन टू द ओरिजिनल प्लेंटिफ एंड शैल प्रोसीड टू ट्राई द सूट इन द ऑर्डिनरी मैनर। तो वो कैसे चलेगा, आप ऑर्डिनरी मैनर में ही चलता है, दोनों में से किसी एक को उठा करके प्लेंटिफ बना दिया, फिर ऑर्डिनरी मैनर में चलता रहेगा, राइट। अब देखो यहाँ पर, चलो अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर दो तुम लोग, और इस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना। चलो मान लेते हैं कि एक लैंडलॉर्ड है, ठीक है, लैंडलॉर्ड है, करता हूँ मत किया कर यार, पता नहीं क्या हो रहा है सीने में खा के, टेनेंट है, वो ₹10,000 खा के ले आएगा भर भर के, रेंट पे करता है लैंडलॉर्ड को, ठीक है। एक दूसरा लैंडलॉर्ड आता है, एक दूसरा पर्सन आता है और कहता है कि मैं हूँ एक्चुअली लैंडलॉर्ड और तुम्हें जो रेंट देना चाहिए ये मुझे दो रेंट, राइट। यहाँ पर ये बताओ कि क्या टेनेंट फाइल कर सकता है एक सूट ऑफ इंटरप्लीडर अगेंस्ट लैंडलॉर्ड 1 एंड लैंडलॉर्ड 2? क्या कर सकता है? कर सकता है। देखो अगर देखा जाए, टेनेंट विल फाइल सूट, ओके। अभिनव, प्रशिता, विजेंदर, तुम्हारा नाम क्या है? मणिंद्र। मणिंद्र तो तुरंत बोल दिया यस सर, एकदम प्रॉम्प्टली। मीनू कर देगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो सेक्शन 88 की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग तो, चलो सेक्शन 88 की डेफिनेशन देखते हैं। Where 2 or more persons claim adversely to one another the same debt sum of money. 2 or more persons, लैंडलॉर्ड 2 और लैंडलॉर्ड 1 दोनों क्या क्लेम कर रहे हैं? रेंट, ठीक है। फ्रॉम to one another the sum of money, movable or immovable, from another person. Another person कौन है? टेनेंट है, राइट। Who claims no interest therein, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, टेनेंट को तो वो देना ही है, मेरे पास तो जाना ही है, अब चाहे इसके पास जाए चाहे इसके पास जाए, राइट। आगे देखो, who claims no interest therein other than for charges or costs and who is ready to pay or deliver it to the rightful claimant। ये तो जो भी सही लैंडलॉर्ड हो उसके पास चला जाएगी। और then such other person may suit a suit of interpleader against all the claimants for the purpose of obtaining as the decision as to the person to whom the payment or delivery shall be made। तो यहाँ पर जो टेनेंट, लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड 2 जो है, तीनों क्या इनके बीच में एक इंटरप्रेटर सूट पॉसिबल है या नहीं है? सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है? हो रही है, हो रही है। तो लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट टेनेंट सूट फाइल कर सकता है। देखो सारे रिक्वायरमेंट्स तो फुलफिल हो रही है, सेक्शन 88 में तो हम लोगों ने देखा ही, राइट। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किसी को अपना आंसर चेंज करना है? नहीं, ओके, दिस इज नॉट अलाउड। क्यों नहीं अलाउड होगा? देखो रिक्वायरमेंट सब फुलफिल करने के बाद भी अलाउ नहीं हो रहा है, यानी कि
कहीं ना कहीं कोई स्पेसिफिक प्रोहिबिशन होगी कि ये अलाउड नहीं होगा, और वही चीज है रूल 5 में। रूल 5 क्या कह रहा है? एजेंट्स एंड टेनेंट्स मे नॉट इंस्टीट्यूट अ सूट ऑफ इंटरप्रीटर। ठीक है, एकदम क्लियर है। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं कि सिर्फ सेक्शन पे मत रहना, ऑर्डर को भी पढ़ना है, क्योंकि डिटेल जो है वो हमेशा ही ऑर्डर में होती है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, डिड यू गेट द पॉइंट? यहाँ पर सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के बाद भी टेनेंट जो है एक सूट ऑफ इंटरप्रीटर फाइल नहीं कर सकता लैंडलॉर्ड 1 एंड लैंडलॉर्ड 2 के अगेंस्ट, राइट? ठीक है, ये तो लिखा है यहाँ पर कि ऐसा नहीं कर सकता, बट क्यों नहीं कर सकता? देखो, दो लोग नहीं कर सकते। एजेंट अपने प्रिंसिपल को नहीं कर सकता, इनेबल एजेंट्स टू सू देयर प्रिंसिपल्स, और टेनेंट्स टू सू देयर लैंडलॉर्ड्स। ये दो लोग एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड है। ठीक है तो यस प्रिशिता, अगर तुम देख पा रहे हो, प्रिशिता सरप्राइज है वहां पर, देखो स्क्रीन पे दिख रहा है कई लोग, राइट? देखो, टेनेंट अपने लैंडलॉर्ड को सू नहीं कर सकता और एजेंट अपने प्रिंसिपल को सू नहीं कर सकता। क्यों? देखो, सेक्शन 116 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है, ये क्या कहता है? ये कहता है, एस्टॉपेल की बात करता है। ठीक है, एस्टॉपेल में स्पेशली फॉर अ टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड, इस सेक्शन में क्लियरली लिखा है कि जिसने भी, ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज टाइप योर नेम एंड योर फोन नंबर इन द मैसेजेस, जल्दी करो। सेक्शन 116 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट वो कहता है कि स्टॉपेल लग जाएगा टेनेंट के ऊपर वंस योर टेनेंसी हैज स्टार्टेड। जब तक टेनेंसी चल रही है, आप लैंडलॉर्ड का टाइटल डिनाई नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरा लैंडलॉर्ड नहीं है। और ये जो स्टॉपेल लग जाता है टेनेंट के ऊपर, इसी की वजह से यहाँ पर टेनेंट जो है फाइल नहीं कर सकता, बिकॉज अगर फाइल कर रहा है वो ये सूट, तो ऑब्वियसली लैंडलॉर्ड 1 जो था उसकी लैंडलॉर्डशिप को डिनाई कर रहा है। इसीलिए सेक्शन 116 ऑफ एविडेंस एक्ट जो है वो प्रोहिबिट कर देता है। इसीलिए यहाँ पर रूल नंबर 5 में ये भी अलाउड नहीं होगा। टेनेंट अपने लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट इंटरप्रीटर सूट फाइल नहीं कर सकता, एजेंट अपने प्रिंसिपल के अगेंस्ट इंटरप्रीटर सूट फाइल नहीं कर सकता। ऑल्दो कि ये लोग अब सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देंगे अपने उसके अगेंस्ट, सेक्शन 88 की रिक्वायरमेंट सारी फुलफिल कर देंगे उसके बाद भी। तो याद रखना कि देयर आर टू रिलेशनशिप्स, वन इज टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड्स एंड दूसरी है हमारी एजेंट्स एंड प्रिंसिपल्स। ये लोग क्या कर सकते हैं? दे आर नॉट अलाउड टू फाइल इंटरप्रीटर सूट्स। टेनेंट्स अपने लैंडलॉर्ड को नहीं कर सकता, एजेंट अपने प्रिंसिपल को नहीं कर सकता। ठीक है, चलो, जो भी हम लोगों ने देखा है कि सेक्शन 88 में कुछ प्रोविजंस थे बट डिटेल्स नहीं थी। डिटेल्स कहाँ पर थी? हमारे ऑर्डर 35 में थी, राइट? कई सारी चीजें जो हम लोगों को ऑर्डर 35 में मिली वो सेक्शन 88 में नहीं थी। द होल पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर इज, देखो, एक सेक्शन का एक कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर होता है सीपीसी को पढ़ने के लिए। तो जैसे आपने सेक्शन पढ़ा, आपको तुरंत ही जाना चाहिए उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर पे। सीपीसी को कभी भी सेक्शन वाइज या ऑर्डर वाइज नहीं पढ़ना है। और उसके लिए मैंने एक लिस्ट बनाई थी, जितने लोग लेट से आए हैं तुम लोगों के लिए है ये। देखो, यहाँ पर लिस्ट है। अगर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स पढ़ना है तो सेक्शन 26 एंड ऑर्डर 4। अगर समन्स पढ़ना है तो सेक्शन 27 एंड ऑर्डर 5। अगर जजमेंट पढ़नी है तो सेक्शन 35 एंड ऑर्डर 20, राइट? एग्जीक्यूशन पढ़ना है सेक्शन 36 to 74 और ऑर्डर 21। देखो, ये चीज ध्यान रखना, सीपीसी को पढ़ना कैसे है? सेक्शन पढ़ो, डायरेक्टली उसके ऑर्डर पे जाओ। जैसे अभी हम लोगों ने इंटरप्रीटर सूट्स किया है, सेक्शन 88 पढ़ा और डायरेक्टली कॉरेस्पॉन्डिंग उसके ऑर्डर पे चले गए। दिस इज द प्रॉपर वे टू स्टडी सीपीसी। और यही गलती मैक्सिमम लोग करते हैं। वो लोग क्या करते हैं? सेक्शन वाइज और ऑर्डर वाइज पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज टाइप योर नेम एंड योर फोन नंबर। एवरीवन प्लीज डू इट, जल्दी करो। ये वाली बात सबको क्लियर हुई? सेक्शन का कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर होता है
तो आपको पहले सेक्शन पढ़ना है एंड देन डायरेक्टली जंप टू द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर। मनींद्र, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि ये वाली बात समझ में आई तुम्हारे कि सेक्शन का एक कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर होगा। तो सेक्शन पढ़ो, अभी हम लोगों ने किया था इंटरप्रेटर सूट्स, सेक्शन पढ़ के फिर हम लोग डायरेक्टली उसके ऑर्डर पे चले गए। यही चीज सीपीसी में ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ प्रोविजंस कुछ प्रोविजंस लिखे हैं जिनका एक सेक्शन है और कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर है। ऐसे ही पढ़ना पड़ता है सीपीसी, राइट। कभी भी कॉलेजेस वगैरह में वो क्या करते हैं, लाइन से सारे सेक्शंस पढ़ा देंगे, फिर लाइन से सारे ऑर्डर्स पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। बस सारे सेक्शंस तो नहीं पढ़ाते, ना ही सारे ऑर्डर्स पढ़ाते हैं। बट हमेशा ध्यान रखना कि ऐसे नहीं पढ़ना है, सेक्शन पढ़ो फिर उसके ऑर्डर पे जाओ, इस तरह से पढ़ना चाहिए सीपीसी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स देखो, सीआरपीसी तो स्टेज वाइज पढ़ना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, उस तरह से हमेशा। पहले आएगा 154 से 176 इन्वेस्टिगेशन पूरा, उसके बाद इंक्वायरी है 190 से 224, और उसके बाद ट्रायल है 225 से लेकर के 265, ऐसा चलना चाहिए। और जब ट्रायल हो जाए तो ट्रायल के बाद जैसे अपील आती है तो उसके बाद अपील पढ़ो या रिवीजन पढ़ो, ऐसे आना चाहिए। तो वो हमेशा जैसे क्रिमिनल केस चलता है उसी तरह पढ़ना चाहिए सीआरपीसी हमेशा। चलो अब देखो कि ये जो मैंने बात बताई है अभी कि सेक्शन का एक कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर होता है और ऐसे ही पढ़ना चाहिए सीपीसी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कोई भी सेक्शन उठा करके और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर को पढ़ना स्टार्ट कर दो। सीपीसी को क्या करना, जैसे सीआरपीसी के बारे में मैंने बताया मनींद्र अभी, ऐसे ही काम तुम लोगों को सीपीसी में भी करना है। सीपीसी को अरेंज करो ऐसे, हाउ डज एन ऑर्डिनरी सूट रन, एक ऑर्डिनरी सूट कैसे रन करता है, ठीक है, कैसे रन करता है। मनींद्र तुमने तो थोड़ी प्रैक्टिस की है, सूट सबसे पहले कैसे स्टार्ट होता है, राइट। तो सबसे पहले क्या आती है हमारी, प्लेंट फाइल होती है, राइट। प्लेंट फाइल होने के बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, बिल्कुल सही, डिफेंडेंट। हाँ, तो डिफेंडेंट क्या करता है, एग्जैक्टली, ठीक है। लेकिन उससे पहले अरे प्लेंट के बाद समन्स जाते हैं ना, अरे डिफेंडेंट के ऊपर समन्स रखोगे तभी तो वो आएगा अपने WS फाइल। प्लेंट ये सेकंड स्टेप हमारा समन्स होता है। सबमिट करता है। अब दोनों पार्टी ने क्या कर दिया है, रिटर्न सबमिशन अपने कर दिए, प्लेंटिफ डिफेंडेंट दोनों ने जो भी सबमिट करना था सब कर दिया। इसके बाद जो स्टेज होती है दैट इज अपीयरेंस एंड एग्जामिनेशन, ठीक है। और ये एग्जामिनेशन एक्चुअली एक ओरल एग्जामिनेशन होता है, राइट, जहां पर कोर्ट जो है दोनों पार्टीज को बुला करके ये पूछती है कि देखिए आपने जो रिटर्न सबमिशन किया था आपका यही मतलब था कहने का या नहीं, या आप कुछ और कहना चाहते थे। तो कोर्ट आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि अगर आप कुछ क्लैरिफिकेशन वगैरह यहाँ पर करना चाहें, ठीक है। देखो अब क्या हो चुका है, कोर्ट ने दोनों पार्टी के रिटर्न सबमिशंस देख लिए, ओरल एग्जामिनेशन भी कर लिया दोनों पार्टीज का। अब नाउ द कोर्ट इज इन अ कंफर्टेबल पोजीशन टू नो द एग्जैक्ट नेचर ऑफ डिस्प्यूट। अब समझ में आ गया है कोर्ट कि इन लोगों में डिस्प्यूट एक्चुअली है क्या, और वही डिस्प्यूट एक तरफ से प्लेंट में असर्शन हो रहा है और WS में डिनायल हो रहा है। फिर कोर्ट उन लोगों को बुला के पूछ लेती है कि आपका असर्शन यही है और आपका डिनायल यही है। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज, अब इश्यू फ्रेम किए जाएंगे। जब दोनों पार्टीज का असर्शन डिनायल हो चुका है तब हमारा क्या होता है, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज। मनिंद्र मुझे लग रहा है कि तुमने क्रिमिनल के केसेस ज्यादा देखे हैं,